اے سارے جہاں کے مالک، تو سب دیکھ رہا ہے نا، مجھے صبر دے۔ عمر یہی کوئی 80 سال ہوگی۔ ان کی بیوی کا انتقال برسوں پہلے ہو گیا تھا، کوئی اولاد بھی نہیں ہے جو ان کی خدمت کرے۔ انہیں ایک بیوی چاہیے جو ان کے بڑھاپے میں ان کی خدمت کر سکے۔ اور سب سے بڑی بات، وہ دہیج نہیں مانگ رہے، بلکہ لڑکی والوں کو مہر کی بہت بڑی رقم دینے کو تیار ہیں۔ وہ تو اس کے دادا کی عمر کے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ میں اپنی معصوم بچی کا سودا نہیں کر سکتا۔ کیا پوری زندگی اسے اپنی چھاتی پہ بٹھا کر رکھو گے؟ تمہارے پاس ہے اتنا پیسہ؟ خوش ہو جا سائرہ، تیرے نصیب جاگ گئے، تیری شادی شہر کے سب سے امیر عظیم خان سے طے کر دی ہے۔ یا اللہ، اگر میری تقدیر میں یہی لکھا ہے تو مجھے اسے سہنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ کہانی ایک ایسی معصوم یتیم کی ہے۔ جب دنیا نے اسے ٹھکرایا تو اللہ نے اسے ایسا نوازا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں پھٹی کی پھاٹی رہ گئیں۔ 18 سال کی سائرہ، جس کے نصیب میں اس کے اپنوں نے اسی سال کا بیمار بوڑھا لکھ دیا تھا۔ سب کو لگا تھا کہ سائرہ کی زندگی اب برباد ہے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اور جب وہ دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ یہ کہانی آپ کے دل کو جھنجھوڑ دے گی اور آنکھوں سے آنسو بہا دے گی۔ آخر کیا لکھا تھا اس بوڑھے کی وصیت میں؟ جاننے کے لیے آخر تک بنے رہیے۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں، لیکن دوستوں ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے۔ کہتے ہیں کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے بھی جنت ملتی ہے، لیکن اگر اسی یتیم پر ظلم کیا جائے تو اللہ کا عرش بھی کان پتا ہے۔ یہ داستان ہے ایک چھوٹے سے گاؤں کی رہنے والی سائرہ کی۔ جب وہ بہت چھوٹی تھی تبھی اس کے والد اور والدہ ایک حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ اس کے بعد سے سائرہ اپنے چاچا جاوید اور چاچی نورین کے رحم و کرم پر تھی۔ چاچا جاوید تو دل کا برا نہیں تھا، لیکن وہ اپنی زبان دراز بیوی نورین کے آگے بالکل بے بس تھا۔ نورین ایک ایسی عورت تھی جس کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اسے لگتا تھا کہ یہ لڑکی ان کے گھر پر ایک بوجھ ہے جو مفت کی روٹیاں توڑتی ہے۔ صبح کی اذان کے ساتھ ہی سائرہ کی زندگی کی جدوجہد شروع ہو جاتی تھی۔ ابھی سورج نکلا بھی نہیں ہوتا کہ نورین کی کڑاوی آواز پورے گھر میں گونجنے لگتی۔ ارے وہ سائرہ، تو ابھی تک سو رہی ہے؟ مہرانی اٹھ اور چولہا جلا، میرے بچوں کو اسکول جانا ہے۔ سائرہ اپنی پھٹی ہوئی چادر ہٹاتی اور یا اللہ مدد کر کہہ کر اٹھ جاتی اور پورے گھر کا جھاڑو پونچھا کرتی، کپڑے دھوتی، برتن مانجتی اور پھر سب کے لیے کھانا بناتی۔ لیکن اتنا سب کرنے کے بعد بھی اسے کھانے کو کیا ملتا؟ رات کی بچی ہوئی سوکھی روٹی۔ نورین اپنے بچوں کو تو گھی لگا کر پراٹھے کھلاتی، لیکن سائرہ کے سامنے ایک سوکھی روٹی پھینک کر کہتی، کھا لے اور اللہ کا شکر منا کہ تجھے چھٹ مل گئی ہے، ورنہ یتیموں کو تو ایک کوئی بھیک بھی نہیں دیتا۔ سائرہ چپ چاپ وہ روٹی اٹھاتی، اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو پونچھتی اور دل ہی دل میں کہتی، اے سارے جہاں کے مالک، تو سب دیکھ رہا ہے نا، مجھے صبر دے۔ سائرہ اتنی خوبصورت اور نکھری ہوئی تھی کہ دیکھنے والے کہتے تھے کہ یہ تو کوئی حور ہے، لیکن اس کے میلے کپڑے اور اداس چہرے نے اس کی خوبصورتی کو چھپا لیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، اب محلے کے لوگ بھی باتیں کرنے لگے تھے۔ جاوید بھائی، اب بھتیجی کی شادی کر دو، جوان لڑکی گھر میں بیٹھی ٹھیک نہیں لگتی۔ یہ باتیں نورین کے کانوں تک بھی پہنچیں۔ اسے فکر ہونے لگی، لیکن سائرہ کی خوشی کی نہیں بلکہ جہیز کی۔ وہ سوچتی تھی کہ اگر اس کی شادی کرنی پڑی تو گھر سے پیسہ جائے گا، جہیز دینا پڑے گا۔ نورین رات دن اسی سوچ میں رہتی تھی کہ کیسے اس مصیبت سے پیچھا چھڑایا جائے اور جیب سے ایک پیسہ بھی خرچ نہ ہو۔ تب ہی ایک دن ان کے گھر ایک رشتہ آیا۔ رشتہ لانے والی بڑھیا نے کہا، نورین بیٹی، شہر کے بڑے سیٹھ عظیم خان صاحب ہیں، بہت پیسہ ہے، بڑا بنگلہ ہے، لیکن بیچارے بہت بیمار رہتے ہیں۔ عمر یہی کوئی 80 سال ہوگی۔ ان کی بیوی کا انتقال برسوں پہلے ہو گیا تھا، کوئی اولاد بھی نہیں ہے جو ان کی خدمت کرے۔ انہیں ایک بیوی چاہیے جو ان کے بڑھاپے میں ان کی خدمت کر سکے۔
उन्हें लड़की की खूबसूरती या खानदान से मतलब नहीं, बस खिदमत करने वाली हो। और सबसे बड़ी बात, वो दहेज नहीं मांग रहे, बल्कि लड़की वालों को मेहर की बहुत बड़ी रकम देने को तैयार हैं। लेकिन खाला, अगर वो 80 साल का बूढ़ा है, बीमार है, तो कितने दिन जाएंगे? अरे डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, मुश्किल से 6 महीने या साल भर के मेहमान हैं। नौरीन का लालची दिमाग तेजी से चला। उसका मतलब सायरा कुछ ही दिन में बीवा हो जाएगी, लेकिन मेहर की रकम तो मिल जाएगी। नौरीन ने दिल ही दिल में सोचा, ये तो सोने पर सहागा है, सायरा घर से दफा भी हो जाएगी, जहीज भी नहीं देना पड़ेगा और अल्टा सेठ जी पैसे देकर जाएंगे। उसने फौरन हाँ कर दी। शाम को जब जावेद घर आया तो नौरीन ने उसे ये बात बताई। जावेद सुनकर रह गया। क्या कह रही हो नौरीन? सायरा अभी सिर्फ 18 साल की है, वो फूल जैसी बच्ची है। और अजीम खान, वो तो इसके दादा की उम्र के हैं। लोग क्या कहेंगे? मैं अपनी मासूम बच्ची का सौदा नहीं कर सकता। क्या पूरी जिंदगी उसे अपनी छाती पे बिठा कर रखोगे? तुम्हारे पास है इतना पैसा कि किसी जवान लड़के से उसकी शादी कर सको और जहेज का बोझ उठा सको? आजकल बिना जहेज के लड़की कोई नहीं ले जाता। और सेठ जी इतना पैसा दे रहे हैं, इससे हम अपनी दुकान बड़ी कर लेंगे, सायरा वहां राज करेगी, बंगले की मालकिन बनेगी। जावेद कमजोर दिल का आदमी था। बीवी की जद और रोज रोज के झगड़ों के आगे उसने घटने टेक दिए। अगले दिन सायरा को यह फरमान सुना दिया गया। नूरीन ने मिठाई का डब्बा सायरा के आगे रखा और बोली, खुश हो जा सायरा, तेरे नसीब जाग गए। तेरी शादी शहर के सबसे अमीर अजीम खान से तय कर दी है। सायरा के पैरों तले जमीन खसक गई। उसने अजीम खां का नाम सुना था। वो जानती थी कि वो बहुत बूढ़े और बीमार हैं। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने अपने चाचा की तरफ देखा और कहा, चाचा, क्या मेरा कसूर ये है कि मैं यतीम हूँ? क्या अम्मी अब्बू जिंदा होते तो मेरी शादी एक बूढ़े से करते? ज्यादा नाटक ना कर, हमने तुम्हें पाला पूसा बड़ा किया है और अब तेरा भी फर्ज है कि हमारे बारे में सोचे। चुपचाप निकाह के लिए तैयार हो जा, वरना तेरे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। सायरा के पास कोई रास्ता नहीं था। वो पूरी रात जाए नमाज पर बैठी, रोती रही। उसने अल्लाह से फरियाद की, या अल्लाह, अगर मेरी तकदीर में यही लिखा है तो मुझे उसे सहने की तौफीक अता फरमा। निकाह का दिन आया। ये कोई शादी का घर नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी की मीयत उठने वाली हो। न कोई ढोल, न कोई शहनाई। सायरा को लाल जोड़ा पहनाया गया, जो किसी पुरानी संदूक से निकाला गया था। मौलवी साहब आए, सेठ अजीम खां भी आए, लेकिन दौल्हा बनकर नहीं, बल्कि एक मरीज की तरह। हाथ में लाठी थी और वो खानस रहे थे। मोहल्ले की औरतें छितों से झांक रही थीं और बातें बना रही थीं। हाय बेचारी सायरा, कैसे फूटी किस्मत पाई है, जवानी में ही बढ़ापा पाल लिया। निकाह पढ़ाया गया। सायरा ने भारी आवाज में कहा, मुझे कबूल है। यह कबूल है। उसने सेठ अजीम खां को नहीं, बल्कि अपनी कड़वी किस्मत को कहा था। निकाह के बाद सेठ जी ने वादे के मुताबिक एक मोटी रकम जावेद के हाथ में थमा दी। नौरीन की आंखें पैसों को देखकर चमक उठें। उसने सायरा को गले भी नहीं लगाया, बस इतना कहा, जा अब अपने घर और हमें भूल जा। सायरे अपनी नम आंखों के साथ कार में बैठ गई। गाड़ी धूल उड़ाती हुई शहर की तरफ चल पड़ी। सेठ अजीम खां का बंगला वाकई बहुत बड़ा था, लेकिन वहां खामोशी का राज था। चारों तरफ नौकर चाकर थे, लेकिन कोई अपना नहीं था। सेठ जी को उनके कमरे में ले जाया गया। सायरा भी डरते डरते अंदर गई। कमरा दवाइयों की गिंध से भरा हुआ था। सेठ अजीम खां पलंग में लेटे थे और जोर जोर से खांसने लगे। सायरा ने अपनी घबराहट को दबाया और जल्दी से पानी का गिलास उन्हें दिया। सेठ जी ने पानी पिया और सायरा की तरफ देखा। उनकी आंखों में होश नहीं थी, बल्कि एक लाचारी और दुख था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटी, मुझे माफ करना।
मैं जानता हूं ये तुम्हारे साथ नाइंसाफी है। मेरी उम्र तुम्हारे दादा जितनी है, लेकिन मैं मजबूर था। मेरे पास दौलत बहुत है, लेकिन कोई ऐसा नहीं जो मुझे दवा दे सके, जो 2 घड़ी मेरे पास बैठकर बात कर सके। मैं तुम्हें बेबी का दर्जा तो शायद ना दे पाऊं, लेकिन तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। ये सुनकर सायरा के दिल से डर निकल गया और रहम आ गया। सेठ जी, आप मेरे सर का ताज हैं। मेरा निकाह आपसे हुआ है तो आपकी खिदमत करना अब मेरा फर्ज है। आप फिक्र ना करें, मैं अपनी आखिरी सांस तक आपकी खिदमत करूंगी। और उस दिन से सायरा की एक नई जिंदगी शुरू हुई। वो सुबह फज्र में उठती, नमाज पढ़ती और फिर सेठ जी की खिदमत में लग जाती। वो उन्हें अपने हाथों से नहलाती, उन्हें वक्त पर दवा देती, उनके लिए नरम खाना बनाती जो वो आसानी से खा सकें। सेठ जी को चलने फिरने में दिक्कत थी तो सायरा उनका सहारा बनती। रात भर जब सेठ जी को खांसी आती और वो सो नहीं पाते तो सायरा उनके सरहाने बैठकर उनके पैर दबाती और कुरान की आयत पढ़कर उन पर दम करती। बंगले के नौकर भी हैरान थे कि ये लड़की जो इस घर की मालकन बन सकती थी, वो एक नौकरानी से भी ज्यादा खिदमत कर रही थी। सायरा ने कभी नए कपड़े नहीं मांगे, कभी गहनों की फरमाइश नहीं की। वो सादगी से रहती और बस सेठ जी की सेहत की फिक्र करती। सेठ अजीम खां की सेहत में सायरा की खिदमत से थोड़ा सुधार आने लगा। उनके चेहरे पर थोड़ी रौनक आ गई। वो अक्सर सायरा से कहते, मेरे गुनाहों की माफी के लिए अल्लाह ने तुम्हें भेजा है। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारी जवानी कैद कर ली। सेठ जी दा, ये तो मेरा नसीब है दा कि अल्लाह ने मुझे आपकी खिदमत का मौका दिया। ये मेरी खुश नसीबी है। उधर नौरीन को जब पता चला कि सेठ जी अभी मरे नहीं हैं और सायरा वहां मजे से रह रही है तो उसे जलन होने लगी। वो सोचती थी कि सायरा वहां मालकन बनकर राज कर रही होगी। एक दिन नौरीन और जावेद बंगले पहुंचे। उनका मकसद सायरा का हाल जानना नहीं था, बल्कि ये देखना था कि कुछ और मिल सकता है क्या। जब उन्होंने सायरा को देखा तो हैरान रह गए। सायरा सादे कपड़ों में थी और सेठ जी के पैर दबा रही थी। अरे सायरा, हमने तो सोचा था तू रानी बनकर बैठी होगी, तुम तो यहाँ भी नौकरानी बनी हुई हैं। चाची, ये मेरा घर है और ये मेरे शौहर हैं। उनकी खिदमत में ही मेरी जन्नत है। सेठ अजीम खां नौरीन की बातें सुन चुके थे। उन्होंने भानप लिया था कि ये औरत कितनी लालची है। 2 साल बीत गए। डॉक्टर ने 6 महीने कहा था, लेकिन सायरा की खिदमत ने सेठ जी को 2 साल और दे दिए। लेकिन बढ़ापा और बीमारी आखिर जीत ही गई। एक रात सेठ जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। डॉक्टर ने चेक करके सिर हिलाया और कहा, अब वक्त करीब आ गया है। सेठ जी ने सायरा का हाथ अपने कमजोर हाथ में लिया और कहा, सायरा बेटी, मेरे पास दुनिया की हर चीज थी, मगर तुम जैसी बेटी नहीं थी। तुमने मुझे वो सब कुछ दिया जो पैसे से नहीं मिलता। अब मेरा वक्त आ गया है। मेरी वसीयत का ख्याल रखना। तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। और सेठ जी ने कलमा पढ़ते हुए अपनी आखिरी सांस ली। पूरे बंगले में कहराम मच गया। सायरा का रो रो कर बड़ा हाल था। वो अब दुनिया में फिर से बिल्कुल अकेली हो गई थी। खबर मिलते ही सेठ जी के दौर दराज के रिश्तेदार, जो कभी हाल पूछने नहीं आए थे, गुधों की तरह बंगले में जमा होने लगे। हर किसी की नजर बंगले और तजूरी पर थी। नौरीन और जावेद भी दौड़े दौड़े आए। नौरीन के चेहरे पर एक शैतानी खुशी थी जिसे वो झूठे आंसुओं के पीछे छिपा रही थी। जनाजा उठा, दफन कफन हुआ। सायरा उदत में बैठ गई। रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। कुछ दिन बाद सेठ जी के वकील साहब बंगले आए। उन्होंने सब रिश्तेदारों को बड़े हाल में बुलाया। वहां सेठ जी के भतीजे, भांजे, नूरैन और जावेद सब मौजूद थे। सबकी नजरें
वकील के हाथ में मौजूद फाइल पर टिकी थी। पार्ट 1 यहां खत्म हुआ, लेकिन अगर आपको लगता है कि कहानी यहीं खत्म हो गई है तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि वकील का आना, रिश्तेदारों की नजर अजीम खान की जायदाद पर, सायरा पर जावेद और नूरीन के जुल्म का बदला, और अब सायरा के साथ क्या होने वाला है, ये सब कुछ अभी बाकी है। और आखिर में सायरा का एक पैगाम जरूर सुनिएगा, लेकिन उनसे पहले मेरी एक दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। या मेरे अल्लाह, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है उन्हें नेक दिल हमसफ़र अता फरमा, आमीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे आपकी राय चाहिए। क्या मैं चाचा जावेद और चाची नूरीन को माफ़ कर दूं या उन्हें धक्के देकर घर से निकाल दूं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।